ہر 7 سیکنڈ کے بعد انسان کے جسم میں ایک انتہائی خطرناک جراثیم داخل ہو جاتا ہے، لیکن بغیر دوائی کھائے ہماری باڈی خود اس کو نیوٹرلائز کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ کیسے؟ یہ ہمارے جسم کے اندر ایک آرمی ہوتی ہے، قوت مدافعت، پاور آف امیونٹی، پورا سسٹم ہے، رینک بنے ہوتے ہیں، تربیت بھی ہوتی ہے جس میں وائٹ بلڈ سیلز، پلیٹلیٹس وغیرہ موجود ہیں، اور اس قوت مدافعت کو ہم نے بچا کے رکھنا ہے۔ یہ ہاتھ پہ چیرا آ جائے نا، ڈاکٹر دوائی دیتا ہے، چیرے کو ٹھیک کرنے کی دوائی نہیں دیتا، چیرا باڈی خود ٹھیک کرتی ہے، دوائی اس کی ایک انفیکشن نہ اس میں ہو جائے۔ اور قوت مدافعت کو بڑھانے کے لیے گوشت ایک بہترین غذا ہے۔ یورک ایسڈ سادہ لفظوں میں ہمارے جسم میں ایک مشین کی طرح چل رہا ہوتا ہے، تو جب مشین چلتی ہے گند پیدا ہوتا ہے۔ یورک ایسڈ ایک قسم کا گند ہے۔ کڈنی یورک ایسڈ کو جسم سے باہر نکال دیتی ہے، یہ خون میں اور پیشاب میں ہوتا ہے۔ اب جتنا یہ پیدا ہوا اور جتنا یہ باہر نکلا، اگر بہت زیادہ پیدا ہو گیا یہ جسم کے اندر سٹور ہو جاتا ہے۔ 2 گودام ہیں اس کے، ایک گردے میں یہ بن جاتا ہے سٹون، اور ایک جوائنٹس کے، ہڈیوں کے جوائنٹس کے درمیان کرسٹل بن کے سٹور ہوتا ہے، جو کہ گاؤٹ کا سبب بنتا ہے۔ ایسے سوج جاتے ہیں جوائنٹس اور بڑا تکلیف دیتے ہیں۔ وہ غذائیں جو یورک ایسڈ کو بڑھاتی ہیں ان میں سب سے پہلے ریڈ میٹ ہے، اور پھر کلیجی دیگر آرگن میٹ ہے، سوڈا ڈرنکس ہے، فرکٹوز شوگر سیرپ ہے، چنے ہیں۔ بعض دوائیاں بھی اس کو بڑھا دیتی ہیں، اور بڑا گندا کمبینیشن ایک شراب اور ریڈ میٹ کا ہے، یہ تو یورک ایسڈ کو سکائی راکٹ کر دیتا ہے۔ پانی زیادہ پئیں، یہ جملہ شاید اتنا صحیح نہ ہو، پانی کم نہ پئیں، یہ جملہ زیادہ صحیح ہے۔ ایک بڑی حیرت کی بات ہے کہ ہمیں پیاس لگی ہوتی ہے اور ہم سمجھتے ہیں ہمیں بھوک لگی ہوئی ہے۔ دن میں 10 بار کھانا کھا لیں گے، 10 بار چائے کافی پی لیں گے، پانی نہیں پئیں گے، ان چیزوں سے اپنی پیاس بجھاتے ہیں۔ 4 لیٹر پانی پی لوں گا تو میرا یورک ایسڈ سیٹ ہو جائے گا۔ او بھائی، یورک ایسڈ 1-2 دن میں تو نہیں، کئی ہفتے کئی مہینے میں بلڈ اپ ہوا ہے جا کر، اور 4 لیٹر 16 گلاس پانی پی کر آپ تو واش روم کا چکر لگاتے رہیں گے۔ یہ ایک ایسا لائف سٹائل بنائیں جس میں پانی داخل ہو، جیسے ہر کھانے سے پہلے پانی پی لیں، اور جب بھی چائے کافی پینے لگے اس سے پہلے 1 گلاس پانی پی لیں، 8-10 گلاس تو یہی ہو جائیں گے۔ زیادہ گوشت کھانے والا ہر وقت رسک میں رہتا ہے۔ ایک تو اس میں ٹاکسنز ہوتے ہیں، ایکسرسائز آپ نے کرنی نہیں، پھر گوشت کو کس سٹائل میں پکایا، گریوی یہ بڑی میٹر کرتی ہے۔ اتنا ڈھیر سارا آئل ڈال دیا، اتنے ڈھیر سارے مسالہ جات ڈال دیے، اب کیا ہوگا؟ یاد ہے پہلے شوربے والا گوشت بڑا پسند کیا جاتا تھا، اب کہتے ہیں شاید یہ غریب ہو گیا اس لیے شوربے والا گوشت پکا رہا ہے۔ شوربے والا گوشت یہ غذائیت سے بھرا ہوتا ہے۔ روزانہ 90 گرام گوشت کھائیں NHS کے مطابق، لیکن وہ جو پہاڑ پہ رہنے والا بندہ ہے وہ کہتا ہے نہ مجھے دل کی بیماری ہے، نہ چربی ہے، نہ میں موٹا ہوں، میرا یورک ایسڈ بھی ٹھیک ہے، سارے بلڈ ٹیسٹ بھی ٹھیک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے گوشت کے پکانے کا سٹائل الگ ہے، بس ٹماٹر کا پیسٹ ہوتا ہے، اندر ڈال کے روٹی کے ساتھ کھا لیا، کوئی ایکسٹرا نہیں ہوتا۔ کولیسٹرول موم کی طرح کا فیٹ لائک سبسٹنس ہے جو پورے جسم کے ہر خلیے کے اندر موجود ہوتا ہے۔ یہ بڑا ضروری ہے، کولیسٹرول انسانی زندگی کے لیے ضروری ہے۔ کولیسٹرول 2 چیزوں کی گیم ہے، ایک فیٹس اور ایک شوگر۔ فیٹس جب سٹور ہوتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے، کسی کا پیٹ باہر آیا وہ پکڑ کے کہے گا جی دیکھو یہ فیٹس ہے، لیکن شوگر کا تو پتہ نہیں چلتا۔ زیادہ گوشت کولیسٹرول کو بڑھاتا ہے، ایک تو اوپر سے چربی گوشت کی نظر آ رہی ہوتی ہے، اور ایک اس کے اندر بھی ہوتی ہے جو نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے اور ہم کھا جاتے ہیں۔ اور پھر آئلز، آج کل تو اتنے تیل ہو گئے، ہر طرف ہر چیز کا تیل نکال دیا ہم نے، آلمنڈ آئل، کوکونٹ آئل، پام آئل، کنولا آئل، کارن آئل، حتیٰ کہ تل کے بیجوں کا بھی تیل نکال دیا ہے، ہر اتنی خشک چیز ہے۔ تو یہ زیتون کے تیل کے علاوہ ہر تیل کے اپنے اپنے مسائل ہیں جناب۔ گوشت ہے تو بہت ضروری، اس میں ہوتا ہے وٹامن اے، ڈی، سیلینیم، زنک، فولک ایسڈ، آئرن، اور وٹامن B12 کا تو گوشت سب سے بڑا خزانہ ہے۔ قربانی کا گوشت فوراً نہ پکائیں، نہ فریز کریں، کچھ دیر ہوا میں چھوڑیں تاکہ اس کے اندر سے پانی نکل جائے، ڈی ہائیڈریٹ ہو جائے۔ گوشت میں سبزیاں ڈال کر پکائیں، زیادہ فائدہ ہوگا۔ -18 ڈگری سینٹی گریڈ پر اگر آپ گوشت کو فریز کر دیں گے بڑی دیر تک چل سکتا ہے۔ کچی سبزیاں، کچا گوشت ایک جگہ نہ رکھیں، کراس کنٹامینیشن ہو جاتی ہے، جراثیم آ جاتے ہیں۔ صفائی کا خاص خیال رکھیں، پولٹری ہو، مٹن، بیف ہو، سٹیک ہو، کسی قسم کا گوشت ہو، عام طور پہ 145 ڈگری فارنہائٹ سے 165 ڈگری فارنہائٹ کا جو ٹمپریچر ہے وہ آئیڈیل ہوتا ہے۔ ڈاکٹر نے مریض سے کہا ہم 3 ہیں، میں، تم اور بیماری، اگر تم نے میرا ساتھ دیا تو اللہ کے حکم سے ہم بیماری کو شکست دے دیں گے، یعنی تم نے میرے کہنے پر دوائی استعمال کی، حفاظتی تدابیر اختیار کی تو ہم جیت جائیں گے، اور اگر تم نے میرا ساتھ نہ دیا بیماری ہمیں شکست دے دے گی۔ کہتے ہیں جو کھانا آپ کھاتے ہیں نا اس کے 4 حصے کر لیں، ایک حصہ وہ آپ کو زندہ رکھتا ہے، باقی 3 حصے ڈاکٹر کو زندہ رکھتے ہیں۔ ہر 7 سیکنڈ کے بعد انسانی جسم کے اندر ایک خطرناک پیتھوجن مائکروب، یعنی کوئی بہت ہی خطرناک جراثیم داخل ہو جاتا ہے، ناک کے ذریعے، منہ کے ذریعے یا سکن کے ذریعے، لیکن کوئی دوائی کھائے بغیر ہمارا جسم
खुद ही उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, मार देता है। ऐसा कैसे होता है? ये होता है इंसान की पावर ऑफ इम्यूनिटी यानी कोते मुदाफ़ियत के जरिए। एंड इट्स अ कंप्लीट आर्मी रिजाइडिंग इनसाइड योर बॉडी। आपके जिस्म के अंदर ये पूरी एक फौज है और एक पूरा निज़ाम होता है। इसके भी रैंक होते हैं और इनकी तरबियत का पूरा निज़ाम होता है। पुरानी जो बीमारियां होती हैं उनसे लड़कर ये उसके आदी हो जाते हैं, ट्रेंड हो जाते हैं। और ये क़ुव्वत मुदाफ़ियत, इसके अंदर बहुत से एलिमेंट्स हैं जैसे WBC, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स वगैरह। जिस तरह हाथ पे चीरा लग जाए ना तो डॉक्टर साहब जो दवाई देते हैं वो चीरा ठीक होने की नहीं देते, वो चीरा खुद ही बॉडी हील करती है। वो दवाई इसलिए दी जाती है कि इसमें इन्फेक्शन ना हो जाए। तो आपको अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत यानी पावर ऑफ इम्यूनिटी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और वो ख्याल कैसे रखा जाएगा? इसके लिए एक बेहतरीन ग़िज़ा वो है गोश्त, मीट, रेड मीट। और आज हमारा फोकस होगा गोश्त से होने वाली कुछ बीमारियों पर। गोश्त के बारे में मजीद बात भी करेंगे, लेकिन गोश्त से यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल लेवल कैसे डिस्टर्ब होता है, दिस विल बी द फोकस। यूरिक एसिड, इससे क्या मुराद है और इसका गोश्त से क्या ताल्लुक है? सुन लीजिए, यूरिक एसिड एक वेस्ट है, एक फुजला है, एक गंद है। हमारे जिस्म में बहुत से केमिकल प्रोसेस हो रहे होते हैं, बहुत से ऐसे काम हो रहे होते हैं, और जब भी मशीन चलेगी कुछ ना कुछ गंद तो पैदा होगा, वेस्ट पैदा होगा। तो इंसानी जिस्म जब चलता है तो जो वेस्ट पैदा होते हैं उसमें से एक वेस्ट वो यूरिक एसिड भी है। ये इंसान के पेशाब में और खून में होता है और किडनीज के जरिए ये जिस्म से बाहर फ्लश आउट किया जाता है। तो यूरिक एसिड एक बाई प्रोडक्ट है, इसने लाजमी जिस्म में बनना है। लेकिन अगर इसकी मिकदार जिस्म में खास लेवल से ज्यादा हो जाए तो अब ये बहुत सी बीमारियों की वजह बन सकता है। गोश्त में ये ज्यादा क्यों होता है कि गोश्त के सेल के अंदर न्यूक्लियस ज्यादा होते हैं। आप सबने पढ़ा होगा कि सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, गोश्त के सेल्स में न्यूक्लियस ज्यादा होते हैं। तो बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। एंड ड्यू टू सैचुरेशन एंड कंसंट्रेशन इट कैन क्रिस्टलाइज, यानी अगर ये ज्यादा हो जाए, बहुत ज्यादा, तो यूरिक एसिड के अंदर एक क्वालिटी है कि ये क्रिस्टल की सूरत में ये क्रिस्टल बन जाते हैं, इसके मुख्तलिफ किस्म के क्रिस्टल, और ये फिर स्टोर हो जाते हैं। देखें, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि जब यूरिक एसिड पैदा हुआ, अब किडनी ने उसको फिल्टर आउट करना है। कितना प्रोड्यूस हुआ, कितना एक्सक्रीट हुआ, कितना वो बना और कितना जिस्म से निकल गया। और अगर ये ज्यादा मिकदार में बना और जिस्म से ना निकला तो अब ये जिस्म के अंदर स्टोर होगा। दो जगह हैं इसके गोदाम, एक हड्डियों के जॉइंट्स में स्टोर होगा क्रिस्टल बनकर, और दूसरा ये किडनी के अंदर स्टोन बनकर ये स्टोर होगा। और अगर ये हड्डियों के जॉइंट्स में स्टोर हो जाए ये यूरिक एसिड तो ये क्रिस्टल की फॉर्म में होता है। और ये गाउट एक बहुत बीमारी है, गाउट आर्थराइटिस इसका नाम है, ये उसकी वजह बनता है। ये बीमारी खतरनाक है क्योंकि अगर गाउट आर्थराइटिस हो जाए तो ये भी हो सकता है कि इंसान चलने फिरने से माजूर हो जाए। आम तौर पे यूरिक एसिड वो पांव के अंगूठे के साथ जमा हो जाता है, जिससे वो जगह सूज भी जाती है। और ये तो जरूरी है ना कि वेस्ट बन रहा है, वेस्ट का बनना ये भी तो जरूरी है ना। मिसाल के तौर पर अगर किसी को पेशाब नहीं आ रहा, इसका मतलब कोई खतरा है, पेशाब का बनना जरूरी है क्योंकि बॉडी वर्क कर रही है, उससे फिल्टर आउट होना है। तो ये यूरिक एसिड ये भी वेस्ट है और इसका बनना भी जरूरी है। वैसे इसका जिस्म को एक फायदा भी है, इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट सेलुलर डैमेज, ये सेल्स को तबाह होने से भी रोकता है। यूरिक एसिड 7 से अगर बढ़ जाए तो ये बीमारी है, और ये बीमारी ये कहा जाए कि बूढ़ों की बीमारी है, नौजवानों की है, ऐसा मसला नहीं है, बल्कि यूरिक एसिड किसी को भी हो सकता है। हाँ, बुढ़ापा खुद एक चैलेंज है। बुढ़ापे में ये मशीन अब इतनी एफिशिएंट नहीं रहती, इतनी हाई परफॉर्मिंग नहीं रहती, तो बुढ़ापे में थ्रेशोल्ड नीचे आ जाता है। यानी एक नौजवान वो हाई ग्लूकोज लेवल को भी टॉलरेट कर लेता है, एक नौजवान वो बड़ी बीमारी को भी हंस के झील लेता है क्योंकि अभी तवाना होता है, जवानी की एक ताकत होती है। लेकिन नौजवानी के अंदर तो ये चल जाता है, बुढ़ापे में थ्रेशोल्ड नीचे आ गया, जरा सा भी कुछ होता है एकदम से बुखार बीमारी आ जाती है। तो यूरिक एसिड ये हेरिडेटरी भी होता है, यानी अगर माँ बाप को था तो बच्चे को भी हो सकता है। गोश्त वाकई ये यूरिक एसिड का बहुत मेन एक सोर्स है। बाज लोग कहते हैं ना कि गोश्त मुवाफिक नहीं आ रहा तो फिर वो गोश्त कम खाते हैं। असल में हर वो खाना जिसमें प्यूरिन्स ये एक चीज है वो ज्यादा होगी
تو اب यूरिक एसिड ज्यादा होगा, क्योंकि प्यूरिन्स वाली ग़िज़ाओं का जब मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिज्म का मतलब है कि खाना जो आपने खाया वो जिस्म में जाके एनर्जी में कन्वर्ट होगा, इसीलिए तो आप खाते हैं ना कि उससे ताकत मिले। तो जब वो खाना एनर्जी में कन्वर्ट होगा और उस खाने में प्यूरिन्स ज्यादा हैं, अब यूरिक एसिड भी ज्यादा बनेगा। तो डाइट वो खानी है जिसमें नाइट्रोजनस कंपाउंड कम हो, क्योंकि अगर नाइट्रोजनस कंपाउंड ज्यादा होंगे यूरिक एसिड ज्यादा बनेगा। वो ग़िज़ाएं जिनके खाने से यूरिक एसिड बढ़ जाता है उनमें रेड मीट सबसे पहले मटन और बीफ है, और मुर्गी की जो टांगे होती हैं, रान जिसको कहा जाता है उसकी, वो द फूड्स विच कैन कॉज यूरिक एसिड हाई, वो ग़िज़ाएं जो कि यूरिक एसिड को बढ़ाती हैं, उनमें नंबर 1 रेड मीट है, यानी मटन, बीफ और मुर्गी जो पोल्ट्री के जो टांगे होती हैं उसका गोश्त जो कि लेग पीस होता है। एंड नंबर 2 सैल्मन, मछली, श्रिम्प्स, ये सी फूड के अंदर भी यूरिक एसिड बढ़ जाता है। और फिर कलेजी है ऑर्गन मीट के अंदर, और शुगरी ड्रिंक्स यानी फ्रुक्टोज सिरप एक चीज़ होती है जो कि शुगर होती है और बड़ी ख़तरनाक होती है, सोडा ड्रिंक्स यानी कार्बोनेटेड बोतलें वगैरह, ये खाने से, और शराब जो लोग पीते हैं सख्त हराम है लेकिन ये यूरिक एसिड को बढ़ाता है। और शराब और रेड मीट, ये कम्बिनेशन तो बड़ा ही गंदा और बड़ा ही ख़तरनाक है। और फिर बाज गुर्दे के मरीज, किडनी पेशेंट्स ऐसी दवाइयाँ खाते हैं कि वो दवाइयाँ भी यूरिक एसिड बढ़ा देती हैं। और फिर इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिसिन, वो लोग जिनका ट्रांसप्लांट होता है गुर्दे का या जिगर का, अब सारी जिंदगी वो इम्यूनोसप्रेसेंट दवाइयां खाते हैं, यानी जो कोते मुदाफियत को दबाने वाली दवाइयां होती हैं, उनको खाने से भी यूरिक एसिड बढ़ जाता है। और डिबेटेबल है कि पानी का रोल क्या है यूरिक एसिड को कम करने में। बिल्कुल रोल है। पानी की जो रिकमेंडेड इनटेक है वो मर्द में 3.7 लीटर पर डे और औरत में 2.7 लीटर पर डे है। ये जुमला कहना पानी ज्यादा पिएं, ये शायद ठीक ना हो, बल्कि ये जुमला कहना ठीक है, पानी कम ना पिएं। अगर आपको प्यास नहीं है तो फिर आप ज्यादा पानी नहीं पी सकते, बड़ा मुश्किल हो जाता है। असल मसला ये है, हमें प्यास लगी होती है और हम समझते हैं हमें भूख लगी है। अगर उस वक्त हम पानी पी लें, हो सकता है वो जो एक क्वेंच है, वो जो एक थर्स्ट है, वो जो एक जज्बा है, वो खत्म हो जाए। लेकिन हम खाना खा लेते हैं, लगी प्यास होती है, दिन में 10 बार खाना खा लेंगे, दिन में 10 बार चाय कॉफी पी लेंगे, पानी नहीं पीते, यानी हम पानी की कमी को खाने से, कॉफी चाय से दूर कर रहे होते हैं। दुनिया के बहुत से मुल्कों में जब कॉफी चाय सर्व की जाती है, पहले पानी सर्व किया जाता है कि पहले पानी पिए फिर उसके बाद कुछ और चीज पिए। तो जब प्यास लगे पानी पीना है, जूसेस वगैरह से प्यास नहीं बुझानी। और लाइफस्टाइल ऐसा रखना है कि प्यास लगे, वॉकिंग करनी है, कोई काम करना है, जॉगिंग, जिम वगैरह करनी है, प्यास लगेगी तो आप पानी पिएंगे। अब रही बात कि पानी पीने से यूरिक एसिड कम होता है, तो याद रखिए यूरिक एसिड एकदम से बिल्टअप नहीं होता, बल्कि इसको हफ्ते, महीने, साल लगते हैं, फिर जाके इसकी मिकदार बढ़ती है। तो अगर आप दिन में 4 लीटर पानी भी पीते हैं, यानी 16 ग्लास पानी भी पी लेते हैं, तो एकदम इसका इंपैक्ट नहीं होगा। बल्कि 16 ग्लास पानी आप कैसे पिएंगे? अगर आप पी लेंगे तो आपका वॉशरूम का चक्कर लगता रहेगा। बात तो अच्छी है कि किडनीज अपना फंक्शन अच्छे अंदाज से करेंगी, वेस्ट को फ्लश आउट कर देंगी, लेकिन इतना पानी पीना, दिस इज ए टास्क। तो डॉक्टर से मशवरा किया जाए, और डॉक्टर के मशवरे से बड़ी अच्छी अच्छी दवाइयां हैं यूरिक एसिड की, ज़ाइलोरिक है, गो यूरिक वगैरह है, उसकी कितनी पोटेंसी होगी, आपका टेस्ट कितना खराब है तो आप दवाई लेंगे, कितने अरसे के लिए लेंगे, ये डॉक्टर आपको बताएगा। हाँ, पानी पीना ये लाइफस्टाइल होना चाहिए। आप यूं कर लेना कि जब भी खाना खाने लगे हैं आप पहले पानी पी लें, जब भी आप कॉफी चाय पीने लगे हैं पहले पानी पी लें। इस तरह तकरीबन 6-7, 3 दफा तो खाना खाना है, 4 दफा चाय पीनी है, तो 7 ग्लास तो ये पानी के हो गए। फिर आप जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उस वक्त पानी पी लें। इस तरह से अगर आप पानी को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे तो ये एक नेचुरल वे बन जाएगी। सो इट्स प्रैक्टिकली आइडियल रूटीन टू कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड। तो यूरिक एसिड की मैनेजमेंट में 3 चीजें इंपॉर्टेंट हो गई। सबसे पहले आप अपनी डाइट कंट्रोल करेंगे, वो खाने जो यूरिक एसिड बढ़ा रहे हैं उसको कंट्रोल करेंगे। फिर आप दवाई डॉक्टर के मशवरे से लेंगे, पानी भी पी सकते हैं, बट ऑल दीज थिंग्स विल बी इन अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइंस फ्रॉम ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। याद रखिए, इंसान के जिस्म में जो चीजें स्टोर होती है ना, जो गोदाम है, उनमें एक तो बोन्स हैं, हड्डियां हैं, लिवर है, जिगर है, मसल्स हैं, और दीगर ऑर्गन्स में जाके चीजें स्टोर होती हैं। और ज्यादा गोश्त खाने वाले मुसलसल रिस्क में हैं,
इसी लिए गोश्त की जो रेगुलर इनटेक बताई गई रोज की, वो बहुत थोड़ी बताई गई है। गोश्त खाने के बाद वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता, आप वॉक नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, और फिर वो गोश्त में टॉक्सिन्स भी होते हैं, जरासीम बहुत ज्यादा होते हैं। गोश्त किस तरह पकाया गया, इतना ढेर सारा ऑयल डाला जाता है उसमें, स्पाइसेस और बहुत ज्यादा मसाला जात डाले जाते हैं उसके अंदर। और अब एक रवाज ये आ गया है कि भुना हुआ गोश्त खाया जाए। पहले तो शोरबा ये ट्रेंड था, अब तो कोई शोरबा पकाए तो शायद कहा जाता पता नहीं गरीब हो गए हो क्या हुआ है। शोरबा, ग्रेवी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि गोश्त के साथ ये जो सब कुछ अंदर जा रहा है, इसका भी तो एक रोल है यूरिक एसिड में, दीगर बीमारियों के अंदर। अब उन चीजों की बात करते हैं जिनमें खाने से कम यूरिक एसिड पैदा होता है। सबसे पहले तो स्किम मिल्क है, यानी वो दूध जिससे बलाई उतार दी गई हो। चेरीज है, कॉफी है, पानी है। एक रिसर्च के मुताबिक जो बंदा रोज 5 से 8 ग्लास पानी पीता है, उसको गाउट यानी वो बीमारी जो यूरिक एसिड की वजह से होती है, वो बीमारी आदि उसके चांसेस कम हो जाते हैं। सब्जियां, राइस, पास्ता, सीरियल्स, ये वो खाने हैं जिनको खाने से यूरिक एसिड कम बनता है। अब रोजाना गोश्त खाना कितना चाहिए? देखिए, एनएचएस की वेबसाइट पर लिखा है, दीगर जो क्रेडिबल रिसोर्सेज हैं वहां से तो ये पता चला कि 90 ग्राम रेड प्रोसेस्ड मीट रोज खा सकते हैं। 90 ग्राम। अब ये लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है, कैलोरीज इनटेक कितनी है। गोश्त प्रोटीन का बड़ा अहम तरीन जरिया है, तो दिन में आप वैसे कितनी प्रोटीन्स लेते हैं। अब एक पहाड़ी बंदा है, उसको आके आप कहते हैं जी गोश्त थोड़ा खाओ, वो क्या, उसके ब्लड टेस्ट भी क्लियर है, ना इसे कोई बीमारी है, ना कुछ और उसको ऐसा कोई प्रॉब्लम है, ना उसका यूरिक एसिड डिस्टर्ब है, उसके गोश्त खाने की रूटीन है। अब नोट कीजिए गोश्त को पकाया किस तरह जा रहा है। मुझे एक डॉक्टर साहब जिनसे मैं मशवरा कर रहा था इस वीडियो के लिए, उन्होंने बताया कि जब मैं पहाड़ पर जाता हूं वहां पर टमाटर का पेस्ट होता है, उस टमाटर के पेस्ट में गोश्त को पकाते हैं और सादी रोटी के साथ खा लेते हैं। नो स्पाइसेस, नो ऑयल, इतनी मिकदार ऐसी नहीं होती। तो ये एक सेफ वे है गोश्त को कंज्यूम करने का। और अब आइए जनाब कोलेस्ट्रॉल के ऊपर। कोलेस्ट्रॉल इज एक्चुअली वैक्सी सब्सटेंस। ये एक मोम की तरह का फैट लाइक सब्सटेंस है जो पूरे जिस्म के हर खलिए में मौजूद होता है। जिस्म में 36 ट्रिलियन सेल्स हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल ये माँ बाप से भी इनहेरिट होता है। माँ बाप को ज्यादा था तो आपको भी हो सकता है। वैसे ये इसकी बड़ी वजह वो लाइफस्टाइल है, जिंदगी का अंदाज है। नंबर 1, एक्सरसाइज नहीं कर रहे। नंबर 2, डाइट बैलेंस्ड नहीं है, सही खुराक नहीं खा रहे। नंबर 3, जो डाइट आप खा रहे उसमें फैट्स की मिकदार बहुत ज्यादा है, और अब ये ज्यादा हो गया तो दवाई भी खानी पड़ सकती है। याद रखिए, कोलेस्ट्रॉल इज वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन आवर बॉडी। वी कैन नॉट लिव विदाउट इट। कोलेस्ट्रॉल के बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता, इतनी जरूरी चीज है। विटामिन डी जो इंसान के जिस्म में बनता है उसकी बेस भी कोलेस्ट्रॉल है। और हार्मोन्स, कई हार्मोन्स हैं जो कोलेस्ट्रॉल के बगैर नहीं चल सकते। 50 किस्म के हार्मोन्स हैं हमारी बॉडी में। ये खास किस्म की चीजें हैं जो खून के साथ जाकर हमारे जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा को ये इंस्ट्रक्शंस देते हैं किस तरह काम करना है। तो हार्मोन्स, एस्ट्रोजन है, प्रोस्ट्रोजन है, कितने हार्मोन्स हैं, और उनकी बेस ये कोलेस्ट्रॉल है। और जिस्म के अंदर ये पैदा होता है। जिस्म को जितना कोलेस्ट्रॉल चाहिए होता है जिस्म उतना बना लेता है। हाँ, बाज ग़िज़ाएं ऐसी हैं जो जिस्म के अंदर जाकर कोलेस्ट्रॉल की प्रोडक्शन को बढ़ा देती हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल की आमतौर पे कोई अलामत नहीं होती। ये ब्लड टेस्ट करवाना होता है, लिपिड प्रोफाइल फास्टिंग के साथ, फिर उससे पता चलता है हाई है या लो है। ये खून में ट्रेवल करता है, अकेला नहीं जाता बल्कि प्रोटीन के साथ मिलकर ट्रेवल करता है। इसको लाइपोप्रोटीन कहा जाता है। इनकी एक टाइप तो है LDL, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, इसे बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। ये नालियों में, खून की आर्टरीज, खून की नालियों में जम जाता है। अब जिस तरह घर के पाइप में गंद जम जाए तो पानी नहीं थ्रू होगा ना, इसी तरीके से जब ये जम जाता है तो ये खून की नालियों को सख्त कर देता है, जिसको एथेरोस्क्लेरोसिस भी कहते हैं। और अब वहां से खून आहिस्ता आहिस्ता रिस कर जाएगा तो हार्ट अटैक, ब्रेन हैमरेज और दीगर इस तरह की बीमारियां हो सकती हैं। क्योंकि जब LDL नाली के अंदर फंस गया तो ये ब्लड वेसल्स को नैरो कर देगा, उनको छोटा कर देगा। अब खून का फ्लो उसमें से मुतासिर होगा। और एक है HDL, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ये अच्छी प्रोटीन्स हैं, अच्छे कोलेस्ट्रॉल हैं। ये पूरे जिस्म से कोलेस्ट्रॉल को लेकर दोबारा लिवर में आ जाता है। देखिए जी, ये सारी गेम है फैट इनटेक की और एक्सेस शुगर की। फैट इनटेक, अगर फैट्स आप ज्यादा ले रहे हैं और शुगर इनटेक देख रहे हैं
देखिए शुगर तो पता नहीं चलती कहाँ स्टोर हो रही है ना, फैट का तो पता चल जाता है, किसी का आदमी का पेट बाहर आया हुआ बहुत ज्यादा, वो पेट को पकड़ेगा और दिखाएगा देखो जी ये मेरी फैट्स हैं, ये यहाँ पे फैट्स जमा हो गई हैं। और ये भी अल्लाह का एक करम है, वैसे तो जो पेट की चर्बी है ये बहुत खतरनाक है, लेकिन एक करम ये भी है ना कि शुक्र है वो चर्बी बाहर आ गई है। अगर वो चर्बी खून की नालियों के अंदर फंसी रहती तो इंसान तो फौरन मर जाता, वो बाहर आ गई है, ये भी एक स्पेशल मैकेनिज्म है। शुगर इस तरह नजर नहीं आती। शुगर कहां स्टोर होती है? मसल्स में या लिवर के अंदर। लेकिन शुगर कभी कभार इतनी एक्सेस हो जाती है कि वो फैट्स बन के स्टोर होती है, जिसको लाइपोजेनेसिस कहते हैं। याद रखिए कहीं भी बीमारी हो शुगर वहां मौजूद होगी। शुगर जहां जुड़ जाए, क्योंकि ये पूरे जिस्म में ट्रेवल करती है, आंख में शुगर आ जाए आंख खराब हो जाएगी, मसल्स में शुगर आ जाए मसल सोर शुरू हो जाएगा, पेट में शुगर आ जाए पेट को खराब कर देगी। तो किन चीजों से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है? फ्राइड फूड्स, पेस्ट्रीज, एग, चीज, फैटी मीट, प्रोसेस्ड मीट, रेड मीट, फास्ट फूड और बीन्स। इसमें 4 चीजें वो हैं जो डायरेक्टली गोश्त से रिलेटेड है। प्रोसेस्ड मीट, फ्राइड फूड, रेड मीट, फास्ट फूड और फैटी मीट, ये सब गोश्त है। तो एक्सेस मीट कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा। एक तो आप देखें ना, वो साफ तौर पे गोश्त की फैट्स नजर आ रही होती है जो चर्बी होती है, और फिर उसके अंदर भी चर्बी होती है जिसके गिर्द गोश्त लिपटा होता है। जब आप ये चीज खाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल तो बढ़ेगा। और फिर ऑयल्स, आजकल तेल का इस्तेमाल इतना ज्यादा हो गया है, और ये तेल हर चीज का तेल निकाल दिया हमने। पीनट ऑयल है, आलमंड ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, पाम ऑयल है, कनोला ऑयल है, इन सब चीजों के हत्ता के जो तिल होता है ना उसका भी तेल निकाल दिया। यानी अब देखिए बिल्कुल खुश्क चीजों का भी तेल हमने निकाल दिया, इतना ऑयल हो गया। जैतून के तेल के अलावा इन तमाम ऑयल्स के अंदर बड़े सख्त नुकसानात है, इसका जिक्र हम अपनी एक और वीडियो में करेंगे। लेकिन ये ऑयल का इस्तेमाल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। तो जनाब ये कोलेस्ट्रॉल आर्टरीज में जम जाता है, इससे अंजाइना यानी चेस्ट पेन, हार्ट अटैक हो सकता है, ब्रेन हैमरेज यानी स्ट्रोक भी हो सकता है। तो जनाब अपना फोकस रखिए लीन प्रोटीन के ऊपर। ये प्रोटीन की किस्म है लीन प्रोटीन, इसको सर्च कर लीजिए वेजिटेबल्स पे, फ्रूट्स के ऊपर, और होल ग्रेन यानी चक्की वाला आटा जिसमें से कुछ निकला नहीं होता वो इस्तेमाल करें। तो जनाब गोश्त है तो बहुत अहम तरीन, इसके अंदर बहुत से अहम गजाई अज्जा मौजूद होते हैं। विटामिन ए, विटामिन डी, सेलेनियम, जिंक, मैग्नीशियम, फॉलिक एसिड, आयरन और विटामिन B12 का पूरी दुनिया के अंदर गोश्त सबसे अहम तरीन जरिया है। इंसान के जिस्म में 10,000 मुख्तलिफ किस्म की प्रोटीन होती हैं। अगर आपका वजन 63 किलो है ना तो आपको 72 ग्राम प्रोटीन दिन में चाहिए, और गोश्त प्रोटीन से भरा हुआ है। लेकिन बहरहाल 2 बीमारियों का तो हमने आपको बताया, अगर एक्सेस लेंगे तो यह प्रॉब्लम करेगी। कुर्बानी के गोश्त के हवाले से नंबर 1 याद रखिएगा, कुर्बानी का गोश्त एकदम नहीं पकाना, ना फ्रीजर में रखना है, खुली हवा में कुछ देर छोड़ दें ताकि डिहाइड्रेट हो जाए। गोश्त में सब्जियां डालकर पकाएं, ज्यादा फायदा होगा। गोश्त को -18 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्रीज करें। जब आप इस दर्जा हरारत पर इसको जमा लेंगे, अब काफी अरसे तक ये चल जाएगा। 40 डिग्री फ़ारेनहाइट से 140 डिग्री फ़ारेनहाइट का जो दर्जा हरारत है ये डेंजर जोन है। गोश्त को ना रखें, इनमें बैक्टीरिया की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। कच्ची सब्जियां, कच्चा गोश्त इकट्ठा ना रखें, क्रॉस कंटामिनेशन हो जाएगी। पकाना कितने दर्जा हरारत पर चाहिए? पोल्ट्री जो है इसको 165 डिग्री फ़ारेनहाइट पर पकाना चाहिए, और मटन और बीफ ये डिपेंड करता है टाइप क्या और इसका कट कौन सा है। बीफ हो, स्टेक हो, बछड़ा हो, बकरा हो, आमतौर पे 145 डिग्री फ़ारेनहाइट से 165 डिग्री फ़ारेनहाइट के दरमियान आइडियल टेम्परेचर है जिसमें सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं। एक तहकीक के मुताबिक वो जानवर जो कुदरती ग़िज़ा पर पलते हैं, चरागाहों में फिरते हैं, कुदरती ग़िज़ा खाते हैं, उनमें 3 to 4% ओमेगा फैटी एसिड्स ज्यादा होते हैं। ये बड़ी अच्छी चीज है जो इंसान के लिए बहुत फायदेमंद है। तो जनाब बहुत ज्यादा रेड मीट का इस्तेमाल कोलोन रेक्टम के कैंसर का बायस भी बन सकता है। जदीद तहकीकात है, आपने एहतियात के साथ गोश्त खाना है, और बिलखुसूस कुर्बानी के दिनों में इस बात की एहतियात करनी है कि गोश्त ज़्यादा ना खाया जाए ताकि बीमारियों से बचा जाए। सेहतमंद रहे, खूब अच्छी ईद मनाएं।